प्राइवेट कॉलेजेस वालों में सब में तो होता ही है कि आई थिंक वी आर लेस, बट we are not the 5K rank, which I doesn't believe to be true. So it's like a proper journey of going through ups and turns. How was your Salah Shots experience? It was my only sport. दो मेंटर्स के साथ रिकनेक्ट किया, डॉक्टर सुखन पुनीत को मैंने रजिस्टर्ड कर लिया और मैम शेड्यूल्स भी बना के दे देते थे, क्योंकि ना मेरे को ऐसे फील होता था अगर एज ए जूनियर मैं करूंगा तो क्या मैं बहुत ही नोइंग हो जाऊंगा कि हाँ हर हफ्ते ये मैसेज कर देता। ऑफ कोर्स उनको ये नहीं लगता होगा, बट मेरे को खुद ऐसे फील होता था। तो एक बैड डे कैसे मैनेज होता था? मतलब मेरे को ज्यादा मैं डिग्रेड नहीं करता था अपने आप को कि हाँ तूने नहीं पढ़ा तूने नहीं पढ़ा। बैड डेज में मेरा होता था कि आई हैव टू सी वीडियोस एंड आई हैव टू डू एक्सरसाइज, क्योंकि मेरे से नोट्स नहीं होते। Hi Divam, welcome to our podcast and thank you for agreeing to be part of it, because the whole purpose behind creating this set of information for people to consume is to let the challenge story out, because every aspirant go through a lot of challenge of their own, which nobody openly talks about, and they suffer in silence. The vision behind this is that there's no need to suffer in silence. There are so many people who have gone through the journey and they have overcome it. So learn from them, and rest, there are other mentors also available to take one-on-one from them. So it's all about passing the right vibe, right message, right feeling to the whole medical community. And you are the one with we are starting this. So you'll always be very special for Salah to agreeing to be part of this initiative. So I'll just quickly introduce yourself, Divam. That will give people a bit brief understanding about you, and then we will go ahead with normal conversation and questions. First of all, I am really happy to be a part of it. And for introducing myself, my name is Divam Garg, and I have done my MBBS from Shri Guru Ramdas. I'm from Amritsar, which is a private college. So I would like to introduce myself from the in NEET PG 2024. My rank was like 40K, around 40K or 40K something. उसके बाद मैंने आयन सेट नवंबर दिया, उसमें मेरा रैंक 13K समथिंग था, which was done after first grading. And then this year November May IN set, उसमें मेरा रैंक था 6K and something, and this year NEET PG 4.5K. So it's like a proper journey of going through ups and turns, and at the end under 5K rank, which I doesn't believe to be true. तो आ गया, तो it's very really off for me. I'm so proud of you, and you are definitely deserving it. That's why you have it. ऐसे अपने आप को less सोचने की जरूरत नहीं है. So we'll start with the main elephant in the room. You being from a private medical college. Yeah. So there's so many in the private medical college already feel that उनके लिए तो है ही नहीं. They are already out of the game. What was your mindset during that time, and how you have the whole journey of you coming out of that self-imposed limitation? This private medical college thing, like in the UG days also, like when I did get admission into this private college, तो उसमें भी मेरे को तब ऐसे फील हो रहा था यार कि अच्छे से मेहनत नहीं करी यूजीज में, इसलिए मेरे को प्राइवेट में एडमिशन मिली है। तो स्टिग्मा जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का वो स्टार्टिंग से था कि आई एम इनटू प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, कि मेरे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से हमेशा कुछ कम आता है, कुछ नहीं आता, या कुछ मैं नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहा। बट आफ्टर 3 or 4 years एंड इन इंटर्नशिप व्हेन यू गेट टू नो पीपल, तो उसमें मेरे को पता लगा इट्स नॉट बिग डील। क्योंकि जो मेरे एक्चुअली काफी रोल मेरे सीनियर्स का है, क्योंकि जो मेरे सीनियर्स थे उनका बहुत अच्छे रैंक आए थे इन द नीट पीजी 2024, लाइक डॉक्टर सुखन पुनीत, उनका बहुत अच्छा रैंक आया था, एंड सम ऑफ माय नॉन सीनियर्स, उनका बहुत अच्छा रैंक आया था। तो उससे मेरे को बहुत ही कॉन्फिडेंस आ गया कि यस आई कैन आल्सो डू इट। एंड one more thing, in like most of the private colleges there is institutional quota, आपका स्टेट कोटा नहीं होता। तो उससे भी आपको थोड़ा सा मेंटली हिट होता है कि मेरे पास मेरा स्टेट कोटा नहीं है, कि ऑल इंडिया कोटा थ्रू ही मेरे को कुछ मिलेगा या फिर सेम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस मिलेगा। तो उसमें भी थोड़ा सा आपको हिट होता है कि यार शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। बट अगर आपकी इमीडिएटली सीनियर्स ने सेम चीज करी हो और फिर आपको उससे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यस आई कैन ऑल्सो डू इट। तो मेरे लिए वो काफी कॉन्फिडेंस बूस्ट था जब मेरे को अपने नॉन सीनियर्स का पता लगा कि यार इनका भी काफी अच्छा रैंक आया, लाइक इन 2Ks 1Ks। सो उससे मेरे को काफी बूस्ट हुआ।
So agreed Devam उस point पे कि एक right hope मिल जाती है ना कि there's Yes, somebody who have done yes, that, who then have done why it. not? Yeah, And I think you are during your whole journey, Sukhan Puneet is the mentor who is yeah, yeah, helping you yeah, out. yeah, yeah. She is such an inspiration Actually, for she so is many. from my college also. So, तो वो मेरे college से ही थे. So it was easy connecting to her. Yeah. Nice. I too love her approach and approach towards life and Yeah, looking yeah. at the thing. She's very positive, trying to pass on the message कि खुद को इतना कम मत समझो. Yes. And I think all her mentees have Magical. that attitude now कि खुद को कम मत समझो. हाँ, क्योंकि बेसिकली प्राइवेट कॉलेजेस वालों में सब में थोड़ा बहुत अननोइंगली होता ही है कि आई थिंक वी आर लेस, बट वी आर नॉट. कि गवर्नमेंट No. कॉलेजेस वाले या कि वी हैव सेम टाइम ऑफ प्रिपरेशन लाइक 1 year और 1.5 year इन इंटर्नशिप. तो उसमें आप अगर नहीं भी आपको कॉलेज का है कि मेरा कॉलेज अच्छा नहीं था, प्राइवेट कॉलेज था, इट डजंट मैटर. तो उससे मेरे Yeah, को ये बहुत बूस्ट हुआ आफ्टर दैट. definitely. मतलब it's 1 year prep, सबको equal time मिल रहा है, सब equal या coaching, या same सेम. coaching approach कर रहे हैं, BTR, RR सब same follow कर रहे हैं. So it's all about कि उस एक साल में हम कैसा efforts put कर रहे हैं या and how we are improving. यू आर पुटिंग एफर्ट तो आपको रिजल्ट एंड पे मिल ही जाएगा. तो मैम ने भी काफी सपोर्ट रखा इस पूरी जर्नी में, वही पॉजिटिव एटीट्यूड की जो आप बात कर रहे हैं. So if we'll go back to your NEET PG result day, Yeah. how was it? Actually, मैं मार्केट गया हुआ था मेरे मदर के साथ. तो मैं जैसे ही घर आया तो मेरे फ्रेंड का मैसेज आया होता, रिजल्ट्स आर आउट. तो मैं एक पहले तो मैं बहुत ही डर गया कि क्या पता क्या होगा. और मेरे को ऐसे भी था जैसे माइंड में आपने रिकॉल्स देखे हुए हैं आपके गलत हुए हैं और आपको ऐसे कि यार ये तो रिजल्ट नहीं आएगा अच्छा. तो मैंने तो रिजल्ट देखा ही नहीं. मैंने अपने मदर को ही बोला था कि आप चेक कर लो, अगर अच्छा तो ही बताना मुझे, नहीं तो मत ही बताना मुझे. तो जैसे मम्मा ने मेरे रिजल्ट चेक किया, इट वाज अंडर 5K. तो मेरे मॉम भी बहुत ही हो गए, चलो कुछ मेहनत का हमें कुछ फल मिला एंड ऑल दैट. तो पहले तो मेरे को बिलीव नहीं हुआ कि आई हैव अंडर 5K. एंड मोस्ट ऑफ इट की जो मेरा रैंक था ना, जो रैंक था उसके जस्ट नीचे वन लाइक मेरा 24 था आई थिंक सो, और 25 का 31K था. तो मेरे को बिलीव हो रहा था कि कहीं मैं गलत ना देख रहा हूँ. तो आई हैव लिटरली चेक 6 or 7 times कि मैं सही देख रहा हूँ मेरे. और लाइक मैंने अपने फ्रेंड को भी भेजा, भाई तू भी एक बार देख के बता दे कि मैं सही देख रहा हूँ ना. तो मेरे को तो बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ कि रैंक मेरा आ सकता है. सो या अभी now looking back, what do you feel कि वो जो पूरी एक साल की prep का difficult phase था, everything worth it in the end? yeah, it was. Because as a from undergraduate days, मेरा सपना था कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में जाऊँ, उधर ही स्टडी करूँ. तो बट वो यूजी में नहीं पूरा हो पाया. तो मेरा पीजी में मेरी मदर को यही था प्रॉमिस कि आप मुझे 1 year का ड्रॉप लेने दो, कि आई एम श्योर कि आई विल गेट इन सीट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. तो या इट वाज वेरी वर्थ इट. मेरे मॉम भी मुझे ये बोल रहे थे कि यस, तूने मुझे एक साल पहले बोला था कि हाँ मेरे को एक साल लेने का ड्रॉप करने दो. तो या इट वाज वर्थ इट. I am so happy कि आपने जो सोचा था वो हो गया. I'm really happy for you. So going back to your prep days, कि everybody have some difficult subject, किसी की GT, plateaus. What was difficult subject for you and फॉर मी मोस्टली डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स जो मोस्टली सबके होते मेरे भी हुए थे, लाइक एनाटॉमी एंड फार्मा. इट वाज मोस्ट डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज मेरे को कुछ याद नहीं रहता था इनका. थोड़ा पढ़ा एंड भूल गए, थोड़ा पढ़ा एंड भूल गए. तो एंड तक लाइक आई वाज डूइंग द सेम मोनोटोनस रूटीन एंड रूटीन. तो उसमें मेरे को पता था कि मेरे को बस यही करके जाना है. इसमें अगर 10 क्वेश्चन आने, 20 क्वेश्चन आने, उनमें से 5 गलत हो भी गए तो कोई बात. बट फॉर मी द गेम चेंजर वाज मेडिसिन. बिकॉज पहले मेरी मेडिसिन बहुत वीक थी. आई वाज लिटरली गेटिंग एवरी क्वेश्चन इनकरेक्ट. बट उसके बाद में जैसे मैंने पैथो, फार्मा और इंटीग्रेटेड सिस्टम्स मैथ के करने स्टार्ट करे, तो उसकी वजह से मेरा स्कोर का बूस्ट बहुत हो गया मेडिसिन की वजह से. लाइक फार्मा एंड anatomy was very hardest for me, but game changer subject for me was medicine. And for GTs तो सबका वही हाल है. Everyone have problem with GT plateaus and scores. मेरा भी same था. I have started my journey of GT from 90 and 100 corrects,
एंड दिसंबर में प्रीवियस ईयर मेरा 120 करेक्ट्स तक हो गया था एंड इट वाज प्लेटो फॉर 3 months देयर ओनली 120 to 130 आई कांस्टेंट स्टक आई वाज आल्सो सिंगर मतलब मैं सबसे पूछ रहा था कि क्या करूं मेंटर से पूछ रहा था कोई भी मेरे को मिल रहा था टीचर्स वगैरह की क्या करूं इस प्लेटो से तो उन्होंने जैसे एडवाइस किया कि आप दोबारा अपनी मिस्टेक्स को देखो छोटी कॉपी बनाओ तो उस प्लेटो से जैसे ही मैं निकला फिर 140 पे अटक गया 140 टू 150 एंड वो मेरा एंड तक ही गया वो बिल्कुल लाइक जैसे अगस्त में पेपर था इन मई तक आई वाज अराउंड 145 150 बट लास्ट रिवीजन जो मैंने 2-3 जीटी दिए मेरा सबसे हाईएस्ट स्कोर था 159 इन जो मैरो का नेशनल मॉक हुआ था उसमें मेरा 159 जो कि हाईएस्ट था तो उसके बाद मैंने एक जीटी दिया होगा फिर मैंने जीटी नहीं दिए क्योंकि मेरे को था कि अगर स्कोर कम हो गया तो आई विल बी लाइक कि हाँ मेरा कुछ बुरा हो गया So, and how you used to analyze your GT? वो उसका कैसा रोल था? Because just Yeah. writing GT तो हाँ everybody. एनालाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फॉर मी लाइक आप बोलते हो ना कुछ सब्जेक्ट ज्यादा आपकी गलत होते हैं कुछ नहीं मेरा क्या था मेरे हमेशा हर सब्जेक्ट में ही 3-4 गलत होते थे लाइक एवरेज एंड बट मोस्टली जो गलत होते थे मेरे फार्मा एंड नेट बिकॉज मेरे को पता था मैं कुछ उनके लिए कर भी नहीं रहा था टू बी ऑनेस्ट फार्मा के लिए कर रहा था बट नेट के लिए आई वाज लाइक मेरे को मैम का इतना ही पढ़ना है अगर आ गया तो ठीक है नहीं तो देखी जाएगी एंड फॉर एनालाइजिंग लाइक मैंने एक वो बनाई हुई थी कॉपी उसमें मैं जैसे मेडिसिन का जैसे जीटी हो गया उसके बाद मेडिसिन की मेरे रोंग्स देख लिए और उनके टॉपिक्स लिख लिए जस्ट सिंपल सिंपल टॉपिक्स लाइक सब टॉपिक्स होते हैं ना जैसे आपका उसमें गलत हुआ हिमैट में गलत हुआ उसका हिमैट का मैंने ड्रग्स लिख ली कि ये मेरी ड्रग्स गलत हुई थी एंड वो टॉपिक लिख लिया ऐसे ऐसे मैंने टॉपिक्स लिख लिए होते थे हर सब्जेक्ट्स के तो मैं अगले जीटी से पहले वो एक बार सब पढ़ के देता था उससे मेरा जीटी का जो फ्लक्चुएशन थी 120 वाली वो ओवरकम हो गई थी तो मैं मतलब मैंने वॉल नोट्स बनाए थे रादर देन छोटी कॉपी तो मैं वॉल नोट्स एंड पे हमेशा जीटी से पहले वो देख लेता था तो उसके लिए थोड़ा सा मेरा लाइक 150 से 155 की रेंज में इसको थोड़ा सा इंक्रीज So, आपकी इस मैसेज से one thing is prominent कि जो तुम्हारा strong subject है medicine से, so don't lose it or leave it just because आपके 2-4 weak subject हैं उस weak subjects के साथ साथ अपने strong subjects को और strong बनाने की मेरा भी यही मानना है कि लाइक मोस्ट ऑफ लाइक काफी मैंने सुना कि आप वीक सब्जेक्ट्स को अपना करो स्ट्रॉन्ग करो बट क्या होता है आप जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स होते हैं आपको उसको लूज कर देते हो जैसे मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जब मैंने स्टार्ट किया फर्स्ट ईयर तो पैथो प्रीति मैम से करी थी एंड मेरा वो स्ट्रॉन्ग बन गया था लाइक मैं वो एवरीडे करता था तो बट मैंने उसको छोड़ा नहीं मैं वो करता ही रहा एंड तक मैंने हमेशा लाइक वन आवर पैथो को दिया because for me that subject was game changer for medicine especially पैथो से मेडिसिन का कोरिलेशन काफी हो जाता था तो उससे मेरे को काफी बूस्ट होता था तो मेरे को पता था मेरा पैथो स्ट्रॉन्ग है तो मैंने उसको छोड़ा नहीं कि भी चलो इसको नहीं पढ़ूंगा तो मैं एंड तक मैंने उसको रखा कि हाँ मैं इसको पढ़ूंगा इसको स्ट्रॉन्ग ही रखा क्योंकि क्या होता है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट छोड़ दो ना थोड़ी मेहनत तो वो भी मांगते हैं चाहे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो वो एटलीस्ट आपका मिड बन नहीं जाएगा और अगर उसको आप नहीं दोबारा रिवाइज कर फिर जब इतना बात करा ही है कि योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हाउ इन जनरल आप योर डे यूज्ड टू लुक लाइक जब आप प्रेप कर रहे होते थे तो एक गुड डे और बैड डे कैसे मैनेज होता था लाइक डेफिनेशन ऑफ मेरा एक्चुअली लाइक अगर आप पूछो पेपर से जस्ट 1-2 मंथ्स पहले एक तो पोस्टपोनमेंट हो गई थी तो उसके 1 वीक तो मैंने कुछ नहीं करा था बट आफ्टर दैट माय डे यूज्ड टू लुक लाइक मैं लाइब्रेरी ही जाता था यहाँ पे तो मैं 8:30 लाइब्रेरी चला जाता था आफ्टर ब्रेकफास्ट उसके बाद आई विल कम होम एट 2 o'clock टू लंच एंड थोड़ा बहुत रेस्ट के लिए फॉर 1.5 hour एंड देन अगेन लाइब्रेरी फ्रॉम अराउंड 4 o'clock to 8 o'clock 8 o'clock लाइब्रेरी मतलब बंद हो जाती थी तो मेरा फॉर अ डे मेरा होता था कि मैंने 8 to 10 hours तो पढ़ना ही पढ़ना अगर उसके आगे पढ़ा जाए तो वेल एंड गुड अगर नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम मतलब मेरे को ज्यादा मैं डिग्रेड नहीं करता था अपने आप को कि हाँ तूने नहीं पढ़ा कि 8 and 10 hours इज वेल एंड गुड फॉर मी और बैड डे तो मैं कुछ नहीं करता था टू बी ऑनेस्ट बैड डे मेरा ये होता था कि मैं लेट उठा 12 बजे फिर मैंने अच्छा खाना पीना खाया एंड थोड़ा 1-2 घंटा पढ़ा जो मैंने बेसिकली
बैड डेज में मेरा होता था कि आई हैव टू सी वीडियोस एंड आई हैव टू डू एमसीक्यूज, क्योंकि मेरे से नोट्स नहीं होंगे। मेरा ये पहले क्लियर था, बैड डेज में मेरे नोट्स तो बिल्कुल नहीं होंगे। और जो मैम की वीडियोस है वो मैं ऐसे लेटे लेटे जैसे सीरीज जैसे वो देख लेता था बैड डेज। बिंज वॉच। हाँ, बिंज। जनम नाम अब बिंज वॉच हो रही है। हाँ, या मैंने उनकी जैसे स्पेशली ईएनडीज बहुत बिंज वॉच करे हैं, जो पहले करे हुए थे, फिर से देख लिए, तो आपको आइडिया पता लग जाता है हाँ ये क्वेश्चन का यही आंसर है। एंड तक मेरे को ये ऐसे हो जाता है, ये क्वेश्चन का तो यही आंसर है। तो मेरा बैड डे तो ऐसा होता था एंड गुड डे वाज लाइक 8 and 10 आवर्स। मैं Fair काफी enough. लाइक फ्लक्चुएट नहीं करता था कि जैसे 16 आवर्स पढ़ लिया फिर जीरो कर दिया, फिर 16 पढ़ लिया फिर जीरो कर दिया। मतलब 8 and 10 आवर्स कॉन्स्टेंटली, रूटीनली। राइट, एंड जो भी हु इज गोइंग टू लिसनिंग टू इस, कि ऐसा नहीं है कि बैड डेज तुम्हारे हर वीक में आ रहे हैं। अब ये मत कर ऑब्वियसली। लेना कि हाँ सो देयर इज अ चेक ऑन बैड डेज, या बिकॉज वो बताया मेरा ना वो होलसेल है। हाँ एक्चुअली बैड डेज को कंट्रोल करने के लिए मैंने सोचा था कि जैसे 7 डेज होते हैं तो आई वुड लाइक टू कि संडे आई वुड लाइक टू कि हाँ चलो जीटी दे दिया, 3 साढ़े 3 घंटे आपको अच्छा दिमाग आपका प्रैक्टिस हो गया उसका, फिर आपने 3 घंटे अपनी रेस्ट अच्छे से कर ली, सब कुछ कर लिया, और एंड पे 2-3 घंटे या 4 आवर्स, 4 आवर्स मैक्सिमम होता था, मैं ज्यादा वो नहीं खींचता नहीं था उसके डिस्कशन को, वो देख ली। तो मेरा संडे ये होता था, और संडे आई वुड लाइक टू टेक एज अ रिलैक्स डे कि जीटी दे दिया। मैं जीटी को ना बहुत ही ज्यादा वो नहीं रखता था कि हैक्टिक रखता था, बस मेरे लिए संडे जीटी एंड रिलैक्स डे होता था। और बाय चांस अगर वीक में कोई एक डे हो गया जब आपकी तबीयत खराब है तो वही बैड डे एज अ काउंट हो जाता था मेरा। नाइस, फेयर इनफ, बिकॉज कभी भी हम किसी को देख के कुछ इंस्पिरेशन लेते हैं या फिर सोचते हैं कि उसके भी तो बैड डेज होते या थे, इट्स ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर कि वो किस फ्रीक्वेंसी पे होते थे, हाँ। उस पर बात करना। वरना यस। पता चला मैं वीक के हर 2-3 दिन बाद बोल रही हूँ आज मेरा बैड डे है, I'll chill. एक्चुअली मैं यही बात बोलना चाहूंगा कि जो भी देख रहे हैं कि जो आपका शेड्यूल होना चाहिए वो लाइक काफी मोनोटोनस होता है हमारा, कि रोज उठो, पढ़ो, खाओ एंड पढ़ो एंड सो जाओ, सेम मोनोटोनस रूटीन। बट इट हैज टू बी दिस बिकॉज इसके बाद ही आपको रिजल्ट आपका कुछ दिखेगा। क्योंकि अगर आप रोज ही कुछ डिफरेंट कर रहे हो या रोज ही कुछ नहीं पढ़ रहे हो तो उसके बाद आपको रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। तो मेरा मेन पॉइंट यही था कि मेरे को डिसिप्लिन रखना था बेसिकली, कि हाँ रोज 8 and 10 आवर्स का डिसिप्लिन तो रखूंगा शेड्यूल। ये मेरे Yes, लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपनी प्रेपरेशन। कंसिस्टेंसी तो बहुत या इंपॉर्टेंट है, एंड बैक अगेन एंड अगेन कंसिस्टेंसी प्रूव करती है कि या इट ऑलवेज ब्रिंग्स रिजल्ट। या क्योंकि मैं कुछ ऐसा भी नहीं था कि प्रोफ में मेरे बहुत अच्छे नंबर आ रहे होते थे या मैं एमबीएस में बहुत ही अच्छा था, एवरेज स्टूडेंट था जैसे होता है। तो मेरे को मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि मेरा अंडर 5 के रैंक आ सकता। Fair enough. And coming back to your the private medical college wala thing, या was you also go through that stigma? Because suppose you have Sukh to take inspiration from, and you are going to be an inspiration for so many people who will watch this video. So उनको क्या बताना चाहते हो, like the people who are in सिग्मा private की बात medical? मैं आपको बताना चाहूंगा। जो हाँ जी, मेरे दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं फ्रॉम स्कूल डेज, दे आर बोथ फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड सिर्फ मैं ही था जो प्राइवेट से कर रहा था। फ्रॉम दे आर फ्रॉम बोथ फ्रॉम जीएमसी अमृतसर एंड मैं मतलब उधर ही अमृतसर में एसजीआरडी से प्राइवेट में कर रहा था। तो जब कंपैरिजन आप बात करते हो तो एज फ्रेंड्स में आपको बहुत होता है कि हाँ यार ये तो गवर्नमेंट से कर रहे हैं, मैं प्राइवेट में करना हूँ, तो इतना इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है आप में कि यार इसके तो नंबर अच्छे ही आएंगे, इसने गवर्नमेंट करी हुई है और मैंने प्राइवेट से करी हुई है। बट ऐसा ट्रू नहीं है, बिकॉज अभी जो रिजल्ट आया, जो मेरे फ्रेंड्स थे उनका रैंक उसका रैंक 5200 समथिंग है और मेरा 4500 है। तो इट्स नॉट ट्रू कि आपका गवर्नमेंट से कर रहे हो तो आपका रैंक अच्छा ही आएगा या प्राइवेट से कर रहे हो तो आपका रैंक वो ही आएगा, पीछे ही आएगा। यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, दैट्स इट। यू जस्ट हैव टू बिलीव इन, बिकॉज अगर आप ही नहीं करोगे खुद पे बिलीव तो कोई भी नहीं करेगा। valid, मैं valid, यही very मैसेज देना चाहूंगा कि जो प्राइवेट कॉलेज की या गवर्नमेंट कॉलेज की थिंक करते हैं ना, कि मेरे साथ तो बिल्कुल पर्सनली थी कि मेरे दोनों बेस्ट फ्रेंड्स गवर्नमेंट से थे और उनको लाइक उनसे बात करना रूटीनली, तो मेरे को ऐसा होता था यार इनका सही है, ये गवर्नमेंट से इनका रैंक भी बढ़िया आ जाएगा। बट अभी जैसे रिजल्ट आया तो इट वाजंट, मतलब मेरा रैंक में शौक था कि हाँ इनसे बेटर आ गया मेरा। तो मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि आपका भी अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हो आप, तो आपका भी रैंक बहुत अच्छा आ सकता है, इवन विद इन 100 रैंक्स भी आ सकते
राइट एंड ये ना माइंडसेट गेम बहुत ज्यादा है, या बिकॉज हम सारे लिमिटेशंस आर सेल्फ इम्पोज, दिस इज समथिंग आई जेन्युइनली बिलीव इन, कि लिमिटेशंस आर सेल्फ इम्पोज अनटिल अनलेस वो कुछ लाइक अलग ही फिजिकल लेवल पे है, एल्स लिमिटेशंस आर सेल्फ इम्पोज्ड। बिकॉज आप खुद ही सोच रहे हो ना कि मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा यार, मैंने तो हम्म, मेडिकल से प्राइवेट से करी हुई है यार, बट लाइक मेरे को तो प्राइवेट में ही लेनी है आगे, मेरा कुछ हो नहीं पाएगा, तो उसमें आ जाओ। आप एफर्ट भी नहीं करोगे। अगर आप खुद पे थोड़ा बिलीव करो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो अगर आप एफर्ट डालोगे तो आपका कुछ कुछ उसमें बेनिफिट होगा ही होगा। चाहे मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ हमेशा ही अच्छा होता है, हमेशा ही से होगा, बट अगर आप एफर्ट डालोगे तो यू विल सी द रिजल्ट्स, इट्स फॉर श्योर। राइट एंड मतलब जो फर्स्ट अटेम्प्ट आपने दिया था उस टाइम पे, was there any pressure फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद कि प्राइवेट ही ले लेता हूँ, why should I हाँ take a या drop, why I यू should नो drop versus प्राइवेट वाला कंपैरिजन? या तो जैसे यूजी में मैंने बताया, तो मेरे घर वालों ने लाइक कह दिया था कि तू ले ले, कोई बात नहीं तू ले ले, अपना ईयर मत वेस्ट कर। सेम थिंग हैपन कि मेरे घर वाले मेरे को कह रहे थे कि ले ले 40K पे, मेरे को इंस्टीट्यूशनल कोटा पे, मेरे को जो मेरे कॉलेज में अराउंड सर्जिकल ब्रांचेस तो मिल ही रही थी या फील्ड्स मिल रही थी, कि तू ले ले कोई नहीं, खत्म कर, ले ले, क्या एक साल और वेस्ट करेगा इसमें। बट मेरे को खुद बिलीव था कि अगर मैं एक साल और करूँ तो आई कैन गेट इनटू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो तब मेरे को ना वही घर वालों से बहुत क्लैश हुआ कि नहीं मेरे को करना है, मेरे को करना है, एक साल दे दो मेरे को, एक साल दे दो। तो मेरा तो यही था, तो बट फिर घर वालों ने ऑब्वियसली मान ही गए वो, कि चल ले ले, अगले साल ले लियो अगर प्राइवेट में लेनी है तेरे को। तो या तो इसमें बेसिकली खुद पे आपको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा कि यू कैन डू इट। एंड उस टाइम पे आपको एक भी बार खुद पे सेल्फ डाउट नहीं हुआ? नहीं, मेरे को सेल्फ डाउट या ऑब्वियसली होता था, बट मेरे को ये था कि जैसे यूजी में भी मेरे को था कि मेरे को एक साल ड्रॉप करा दो मैं निकाल लूंगा। तो उसका ना मेरे को थोड़ा यूजी डेज से मेरे को था कि यार मेरे को करना है, मेरे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है, चाहे मेरे को एक साल अच्छे से प्रॉपर ड्रॉप करूँ, कुछ जॉब वगैरह ना करूँ, तो मेरे थोड़ा सा कह लो कि आप यूजी डेज से ही था कि सेल्फ डाउट तो था ऑब्वियसली। बट मेरे को कॉन्फिडेंस, मैंने जैसे आपको बताया कि सीनियर से काफी कॉन्फिडेंस आ गया था कि यार ये भी कर सकते हैं, ये भी हमारे जैसे ही थी, तो हम भी कर सकते हैं। राइट एंड जैसे लिसनिंग टू यू इट फील्स लाइक कि एवरीबॉडी हैव देयर व्हाई, कि मुझे ये या क्यों करना है, बिकॉज आई या हैव हर्ड इट फ्रॉम सो मेनी पोस्ट इन टर्न कि एटलीस्ट दे वर क्लियर कि मेरे को ये मेरा व्हाई है, दैट्स द रीजन आई हैव टू टेक हाँ अ ड्रॉप, या आई वांट स्पेसिफिक ब्रांच और आई वांट समथिंग लाइक दिस। तो वो उनका व्हाई एटलीस्ट क्लियर था, बिकॉज ये एक साल की जर्नी बहुत डिफिकल्ट जर्नी है, बहुत फुल ऑफ अप्स एंड बहुत सेल्फ डाउन्स। डाउट की जर्नी है ये, कि आपको रूटीनली 1 वीक के बाद आपको होगा यार मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा। आपको बेसिकली कोई रीएश्योर करने के लिए होता है ना, तो वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट बहुत करता है कि आप जैसे आपका कोई मेंटर है, आप उससे पूछ लो कि मैम मेरी ये चल रही है, ऐसे शेड्यूल फॉलो कर रहा हूँ, अगर वो आपको जस्ट यही कहते कि तू ठीक कर रहा है, बस ऐसे ही चलता रहे, तो आपको उससे बूस्ट हो जाता है कि हाँ इन्होंने बोल दिया तो Nice, huh? So coming back to the mentor you put in, how डर। was your Salashots experience and how do you got to know about it and what's your feeling now on Salashots? जैसे मैंने आपको पहले बताया, डॉक्टर सुकुन पुनीत को मैंने, मेरे सीनियर थे तो मैंने उनको रिजल्ट के बाद मैसेज किया था कि कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, तो उनसे टिप्स वगैरह ली थी, तब तक मेरे को स्लैश वर्ड्स का नहीं पता था। उसके बाद मैंने जैसे स्लैश वर्ड्स का फ्रॉम इंस्टाग्राम देखा, तो मैंने आपको लाइक मैसेज करा था आई थिंक सो तब, और उसके बाद मैंने एक दो मेंटर्स के साथ रिकनेक्ट किया, तो मेरे को लगा कि यार कि कुछ तो न्यू पता लग रहा है कि शायद मेरी प्रेपरेशन ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है। तो मैंने वैसे फिर स्टार्ट किया, और उसके बाद जब मेरे को पता लगा कि डॉक्टर सुकुन तो लाइक आपके साथ ही वो है, तो मैंने फिर रजिस्टर्ड कर लिया कि हाँ उनका जो ग्रुप है टेलीग्राम का, कि उधर कर लेते हैं कि टाइम टू टाइम बढ़िया मिल जाएगा। क्योंकि ना मेरे को ऐसे फील होता था अगर एज ए जूनियर मैं करूंगा तो क्या मैं बहुत ही नोइंग हो जाऊंगा कि हाँ हर हफ्ते ये मैसेज कर देते हैं, ऑफ कोर्स कि वो उनको ये नहीं लगता होगा, वो तो कर ही देंगे मैसेज, बट मेरे को खुद ऐसी फील होता था। तो मैंने कहा ग्रुप ही ज्वाइन कर लो, तो इसमें मैम खुद ही अपना जैसे रूटीन ही डालते रहते थे। तो वैसे जर्नी स्टार्ट हुई, तो जब भी मेरे को कुछ डाउट होता था या जैसे सेशंस होते थे स्पेशली कि मैम के आफ्टर 20 डेज या 15 डेज, तो उसमें काफी कुछ पता लग जाता था कि नहीं यार ये चेंज करना है, ये शेड्यूल में थोड़ा ट्वीक कर लो। और मैम शेड्यूल्स भी बना के दे देते थे लाइक हाँ ये शेड्यूल आप फॉलो कर लो अगर आप खुद का शेड्यूल नहीं है। तो एंड तक तो मतलब बेसिकली इट वाज माय ओनली स्पॉट की मेरे को ऐसे बेसिकली मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी कि मेरे को कोई बोलते हाँ तू सही कर रहा है, तू सही कर रहा है, तू ऐसे ही चलता जा। तो वो मैम ने मेरे को बोली थी कि हाँ सही कर रहा है, थोड़ा सा ऐसे कर ले, थोड़ा सा ऐसे कर ले, तो फिर मेरे लिए एंड तक ना बिल्कुल ऐसे होगा कि यस आई कैन डू इट। मेरे लिए थोड़ा इजी इसलिए था बिकॉज शी इज फ्रॉम माई कॉलेज, तो मैं
कनेक्ट बड़ी इजीली हो रहा था उनसे। Right, but still I'm glad कि she being your junior, you have that thing कि एक बार residency में जाने के बाद Yeah, they got occupied and yeah. I remember having our initial conversation with Sukh जब उसने join किया था. She was so into to pass this message out to so many people कि अगर मैं कर सकती हूँ ना तो कोई भी कर सकता मेरे है. को भी उन्होंने, जब मैंने उनको रीच आउट किया था आफ्टर रिजल्ट्स, तो मेरे को भी उन्होंने ये बताया था कि तू भी कर लेगा, कोई बात की टेंशन नहीं है, मैंने भी करा, तू भी कर लेगा। So I loved it कि it Yeah, helped. it really helped a lot कि बेसिकली मेरे को तो ये था, मेरे को कुछ कंफर्म करने के लिए कोई जिसने कुछ मतलब लाइक थोड़ा वो पाथ फॉलो करा है, मेरे को उसकी कंफर्मेशन चाहिए कि मैं सही कर रहा हूँ, तो वो देते रहते थे, तो मैं जस्ट बिना कुछ वो करे कि इधर उधर ज्यादा देखे चलता रहता था। Right, because I always believe कि me coming from a non-medical background, I've always had the communities around me. या कि community, right set of community to uplift and grow, कुछ discuss एक्चुअली करना है, राइट कुछ सेट tools ऑफ करना है. एटीट्यूड अगर आपके अराउंड है तो आप बड़ा अपलिफ्ट इजीली हो सकते हो rather than being नेगेटिव अराउंड, क्योंकि आपको कोई Right, अगर बोलता ही रहे कि आप नहीं कर सकते, आप कुछ ये बुरा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा यार, कुछ ऐसा हो जाएगा, तो आप डाउन ही हो जाते हैं कि छोड़ो यार। अगर आपको कोई right. बोल रहा है कि यस यू कैन डू इट, तो यार Because see ना, we human being have this tendency कि अगर मेरे को 3 लोग में से 2 लोग बोल रहे हैं कि तू अच्छा कर लेगी और एक ने बोला कि तू नहीं कर पाएगी, तो मैं जो हाँ, मैं नहीं उस कर पर पाएगी वो कॉन्सेंट्रेट मैसेज लेके बैठी रहती हूँ. हाँ, मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करूंगा कि यार इसने बोल दिया नहीं कर पाऊंगा, क्यों बोला, तो कैसे बोला। राइट, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी लाइफ में बीइंग अराउंड द राइट सेट या ऑफ पीपल. या एंड आई थिंक यू वर पार्ट ऑफ सुक्का कम्युनिटी, राइट? या या फिर कम्युनिटी यस. हाँ, सो बिकॉज शी वाज रनिंग हर कम्युनिटी और फिर लॉन्ग मेंटोरशिप भी चल रहा था. सो दैट्स व्हाई आई बिलीव कि अगर तुम्हारे पास लोग नहीं है तो इट्स बेटर टू नॉट हैव एनीवन देन एक्चुअली हैविंग अ कम्युनिटी राइट का सेट ऑफ एक और पीपल. बेनिफिट भी था, क्योंकि जो उस पे जो मेरे साथ लाइक जिन्होंने ज्वाइन किया था उनके भी लाइक मैंने पूछे, रैंक्स बड़े अच्छे आए, एक का हम्म. 3000 कुछ आया है एंड समथिंग, एक का 9000 कुछ आया एंड ऐसे ऐसे आया है। तो वो क्या होता था, वो डाउट्स पूछते थे, डाउट्स क्लियर होते थे, आपस में इंटरेक्शन होती थी, आप ऐसे कर रहे हो, आप ऐसे कर रहे हो, तो उसमें आपको काफी क्लियरिटी मिल जाती थी कि हाँ यार मैं सही रास्ते पे हूँ। तो आपकी लाइक विद पीयर्स जो आपके साथ प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी थोड़ा आप टच में रहते थे, डाउट्स वगैरह क्लियर होते थे, तो उससे बहुत बेनिफिट होता था। डेफिनेटली, मतलब एक मेंटोर से टाइम टू टाइम हमें इंफॉर्मेशन और या नज मिलता रहे कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बट एट हाँ द सेम टाइम राइट सेट ऑफ पीयर्स भी हो या ताकि हमारी हम राइट डायरेक्शन पे रहे और कुछ हो तो उनको इजीली हाँ रीच आउट कर पाए. या बेसिकली या दैट इज। Let's talk about mindset का कितना बड़ा रोल है, because I have seen it with so many people कि subject everybody is reading from the same resource, वही follow कर रहे हैं, but what differentiate them is the mindset they are carrying and up having या it. तो सेल्फ डाउट रोज होगा, उसको रोज मैनेज करना है. फोमो होगा, उसको नेविगेट करना है. सोशल मीडिया प्रेशर्स और वो सारी चीजें आएंगी, बट इट्स द माइंडसेट यू कैरी एवरी डे दैट मेक्स द डिफरेंस. तो आपका क्या क्या अप्रोच है माइंडसेट पे लेकर के, एंड हाउ यू हैव बिल्ड इट द होल इन दिस जर्नी? माइंडसेट मेरा एक्चुअली, मेरी मदर मेरी लाइक काफी सपोर्ट करते रहते, तो उनके उनके साथ मैं काफी शेयर करता रहता हूँ कि मेरा इतना स्कोर आया, इतना स्कोर आया, तो उनका भी काफी रोल था मेरे माइंडसेट में। जैसे कि पहले मेरे स्कोर्स मैंने बताया कि स्टक हो गए थे, मेरे को बिल्कुल ऐसा हो रहा था कि यार नहीं हो रहा, ये तो बढ़ ही नहीं रहे, कुछ भी कर लो बढ़ ही नहीं रहे। पर मम्मा बोलते रहते थे बीच में, हाँ कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, तो करता रहे बस, तेरा स्कोर अगर एक भी इंक्रीज हो रहा है तो होएगा, तो अगर एक भी इंक्रीज है तो बी हैप्पी अबाउट इट, कि डोंट सेल्फ अबाउट एवरीथिंग, कि कुछ भी बुरा हो रहा है, मैं आज आधा घंटा लेट उठा और फिर मैं बस अपना ऐसे करके बैठ गया कि मेरा दिन तो बेकार है। बेसिकली मेरा माइंडसेट यही था, मेरी मम्मा ने मेरा माइंडसेट ऐसे क्रिएट कर दिया था कि अगर तेरे को कुछ भी अच्छा हो रहा है ना तेरे प्रेपरेशन की जर्नी में, तो उसको इतनी खुशी मना कि अगर कुछ भी बुरा होए तो वो उसको काउंटर ना कर पाए। लाइक अगर मेरा लाइक कुछ भी दिन में, जैसे मैंने एक मिड डे मॉड्यूल किया, उसका उसमें मेरे 50 क्वेश्चंस में से मेरे अच्छे क्वेश्चंस ठीक हो गए, 35-40 क्वेश्चन, तो उस दिन का मेरा कुछ भी बुरा होगा ना मेरे साथ, तो फिर मैं उसका बुरा नहीं मानूंगा, मैंने जो अच्छी चीज हुई है वो ये चीज सोचूंगा कि हाँ मेरे आज इतने क्वेश्चंस अच्छे हुए। तो मेरा माइंडसेट थोड़ा थोड़ा ऐसा होता रहा, तो मैं जो पॉजिटिव थिंग्स थी उस पर ज्यादा कंसंट्रेट करता था रेदर देन नेगेटिव, कि यार आज ये बुरा हो गया, ये बुरा हो गया, बट कि जो भी एक आधी अच्छी चीज हो जाती थी उस पर ज्यादा। सही बात है कि एंड माइंडसेट इज समथिंग मुझे ऐसा लगता है हर स्किल सेट की तरह या सीखना ही पड़ता है.
ये आपको एक्चुअली जर्नी से ही आएगा, जो आपकी 1 साल या आप जब भी प्रिपरेशन अपने स्टार्ट करते हो, आप गो थ्रू करते हो अप एंड डाउन से, तो उसको आपको वो करना आ जाता है कि अडेप्ट करना आ जाता है, उससे ही आपका माइंडसेट बन जाता है कि यार मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, या मैं सही हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ तो सही है मेरा। तो उससे आपका माइंडसेट थ्रू द जर्नी विद इन 3 और 4 मंथ्स काफी बिल्ड हो जाता है आपका माइंडसेट। राइट एंड क्योंकि क्योंकि बताइए। जैसे पहले मैंने जस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट किया था, तो उससे 2 मंथ पहले मैं घर पे आ गया था, तो मैंने थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया था, तो तब मेरा माइंडसेट बिल्कुल वैसे था कि यार ये तो कुछ नहीं हो रहा, छोड़ो रहने दो, कि 2 घंटे पढ़ लिया बस होगी। तो बिल्कुल ही जैसे आपको होता है ना, ढीला माइंडसेट था कि मैं कुछ कर नहीं रहा था, बट उसके बाद फिर मेरे को उठा कि कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो तब से फिर बिल्ड होना स्टार्ट हुआ सेट। मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि एकदम से ऑब्वियसली नहीं हुआ, विद टाइम, बट विद टाइम फॉर श्योर आपका माइंडसेट डेवलप हो ही जाएगा, कि ऐसा तो राइट, है। एवरी डे तुमको वो या राइट डायरेक्शन में सीट शो करना या पड़ेगा ताकि या या ग्रो करे। Fair enough. And during your whole prep, one of the like, if you had to say कि darkest या difficult phase कौन सा था and आपने उसको overcome कैसे किया? डिफिकल्ट फेस में कहना चाहूंगा कि वैसे तो लाइक इट वाज नॉट, मेरे लिए वो डिफिकल्ट था, लाइक जैसे ना मेरे ब्रदर वगैरह की मैरिज हो रही थी, सिस्टर की मैरिज हो रही थी, तो उनको बोलना या करना कि यार मेरे को तो मैं नहीं आ सकता, मेरे को पढ़ना है ये सब। और उसके आपको विद इन 4 5 डेज की सभी इंजॉय कर रहे हैं, सभी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और आप उसके टेबल पे बैठे हो, वही बुक खुली हुई है, वही एमसीक्यूज फिर से गलत हो रहे हैं। तो उस फेस से गो थ्रू करना काफी डिफिकल्ट था। बट अगर आपको उस फेस में कोई ऐसा मिल जाए कि हाँ यार नहीं कुछ नहीं होता, मैं भी तेरी सेम बोट में ही है, हम सारे मेडिकल्स, तो कोई चक्कर नहीं, तो उन पे मत कंसंट्रेट कर, सीधा बस अपना चलता जा। तो उस टाइम पे कोई किसी का होना जो आपको बोल सके कि नहीं ठीक है, मैं भी तेरे साथ सेम बोट में ही हूँ, हम सब चीजें सही कर रहे हैं, तो उसका बहुत बेनिफिट है। Agreed. मतलब it's all about छोटे छोटे sacrifices we have to या make. And कि कोई आपकी फैमिली जा रही है हॉलीडेज पे और आपको भी जाना है, बट आप नहीं जा सकते, तो उस इसमें आस होता है कि यार मेरे को नहीं पता, मेरे से कोई कुछ नहीं हो रहा, बट आपको कि अगर कोई बोल दे, कुछ भी कोई बोल दे कि यार नहीं तू मत जा, तू नहीं जाएगा तो तेरा रैंक पक्का आ जाएगा, तेरा रैंक पक्का आ जाएगा, मैं बोल रहा हूँ, तो उससे आपको ऐसा हो जाता है कि ठीक है मैं पढ़ लेता हूँ। तो या दैट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, कि मेरे को ऐसे बैठे रहना, यार पढ़ना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा। बिकॉज ये बहुत अनसर्टेन जर्नी है ना दिव्यम, रिजल्ट क्या होगा किसी या को नहीं पता है, वो बहुत मैटर कर रहा है कि लास्ट डे भी एग्जाम डे कैसा टर्न क्या आउट हो होएगा। रहा है, राइट? या तो वो बहुत अनसर्टेन है वो। वेरिएबल्स बहुत है जर्नी में। एंड हाउ वाज योर एग्जाम डे? एग्जाम डे दिन कुछ पैनिक, चैलेंज, कुछ ट्रेजेडी आपके साथ हुई? मेरा एग्जाम डे एक्चुअली मैंने ना जैसे 4 एग्जाम्स दे दिए हुए थे ऑलरेडी, तो मेरे को इतना कुछ था नहीं। ऑफ कोर्स थोड़ा ऐसे रात को हो रहा था पैल्पेशंस की, हाँ भाई मेरे को, जब मैंने अपने थोड़े से वॉल नोट्स करके किया बहुत कुछ चाहिए, तो मेरे कुछ नहीं आ रहा है, रात को मेरे को बड़ा हो रहा था, बट मैंने कहा चुप करके सो जाऊँ बस अब। और नींद भी नहीं आई, मैं उठ गया था लाइक 5 o'clock, आई वॉक अप, उसके बाद मैं बस अपनी वॉल नोट दोबारा देख रहा था, फोटो कॉपी दोबारा देख रहा था। बट मेरे को ऐसे था कि यार कि एटलीस्ट आज एंड होगा, जो भी होगा आज एंड होगा। तो मेरे को एक जस्ट उसका पॉजिटिव था कि हाँ भाई इसके बाद मेरे को बुक तो नहीं उठानी, एटलीस्ट फॉर टिल द रिजल्ट्स, तो मेरे को बुक नहीं उठानी। तो उसके लिए मैं बहुत हैप्पी था। तो मैं थोड़ा सा लाइक हाफ आवर पहले या 40 मिनट्स पहले सेंटर पहुंच गया था, बिकॉज एंड पे थोड़ी सी आपको ऐसा होने लग जाती है कि अब जल्दी जाना जल्दी जाना। मैं अपना आराम से वहां पे वो क्या कहते हैं सीट वगैरह मिल गई थी, एंड मैं चिल्ल होके बैठ रहा था। बट जैसे ही पेपर लाइक 5 मिनट्स हो जाते हैं ना, जब आपको पता है कि हाँ 5 मिनट्स रह गए या होने वाला स्टार्ट, तब बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि यार मेरे को क्या पता क्या क्वेश्चन आएगा फर्स्ट। मेरे लिए एक्चुअली स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन बड़े मैटर करते हैं। अगर 10 क्वेश्चन थोड़े से मतलब मेरे लिए ऐसे इजी हो, तो मेरे को पता है कि मेरा ये जीटी या अच्छा जाएगा। अगर वो क्वेश्चन नहीं अच्छे हो, तो मेरे को पता है ये खराब हो जाएगा, मेरे को संभालना पड़ेगा। बट या वो डिफिकल्ट जाएगा। तो बाय चांस जो स्टार्टिंग वाला मेरा सेट था वो इजी था, तो उससे तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा ऐसे होगा कि हाँ मेरे को आता है। तो उससे मेरा पेपर लाइक सही डायरेक्शन में चल रहा नाइस। Your journey is very interesting, and we talk about this so much component. And see, couple of hard facts you said, but उसको इतने, so I know कि we are laughing around it है। या now, but हाँ वो जब हो रहा था तब वो बहुत मुश्किल था। या ऑफ कोर्स। अब अभी हम नो, उस पे हंस सकते हैं, बट वो नहीं बिकॉज रहा ऐसा।
मैं तो ये बोलता हूँ अगर आपका रिजल्ट आया आप तभी हंस सकते हो, नहीं तो आप जो भी करा था आप उसको रिग्रेट ही एक एज ए रिग्रेट लेते हो कि यार तब ऐसे था, तब मेरा ये रह गया था। अगर आपका रिजल्ट आ जाए फिर यू कैन लाफ अबाउट इट। तो इट मतलब आपकी थोड़ी जर्नी ना, लाइक एंड जो एंड पे जर्नी मेरे लिए मतलब जैसे पेपर के 7 डेज वाली जर्नी बहुत मैटर करी थी मेरे, क्योंकि मेरे को पता था कि मैं अगर ये 7 डेज में मेरा सिलेबस नहीं हुआ तो मैं भूल जाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत जल्दी भूल जाता हूँ चीजें। तो 7 डेज का मेरा थोड़ा सा अच्छा बाई चांस मेरा लाइक फ्लो बन गया आप कह सकते हो। तो उससे मेरे को बूस्ट आ गया कि हाँ यार ये अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है तो कुछ अच्छा ही होगा। And acha hua, I'm so happy for that. So we'll wrap it up with advice or message from your end to the people who are going to sit next year or uske baad bhi. So the people who are going to watch, what message you want to the pass on every aspirant of NEET PG or मैं यही IIMs? बोलना चाहूंगा अगर कोई जैसे फॉर जो एक ड्रॉपर्स होते हैं एंड जो अभी कर रहे हैं स्टार्ट, फॉर जो ड्रॉपर्स हैं उनके लिए अगर आप ड्रॉप कर रहे हो इसका मीनिंग ये नहीं है कि आपका अगले साल बुरा ही आएगा, क्योंकि जो मैंने अपने पिछले पिछले साल ड्रॉप के लिए सुना था कि तेरे को क्या पता तेरा रिजल्ट इससे भी माड़ा आ सकता है, इससे भी बुरा आ सकता है, तू क्या रिस्क लेना चाहेगा। कि मैं यही कहना चाहूंगा अगर आप खुद पे बिलीव करोगे ना तो आप वो रिस्क ले सकते हो। इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ कि हाँ मेरे को पता है मैं निकालूंगा, मेरे को पता है मैं ये निकाल सकता हूँ, तो आपको किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 20K भी है 25K भी है, अगर आप फिर भी ड्रॉप लेना चाहते हो गो फॉर इट। और जो अभी फ्रेशर्स है और उनका तो स्टार्ट हुआ है जर्नी, उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि जो आपकी जर्नी ना आपको लगेगा कि यार मैं रोज ही सेम चीज कर रहा हूँ, रोज ही सेम चीज कर रहा हूँ, और वो भी डाउट हो कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, रोज सेम चीज सही कर रहा हूँ। तो उसको गो थ्रू करने के लिए कि या यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ कि नहीं मैं तो सही कर रहा हूँ मेरे को पता है, या आपको कोई ढूंढना पड़ेगा कि हाँ मेरे को कुछ जो कंफर्म कर दे कि मैं सही कर रहा हूँ ना, कि मैं सही कर रहा हूँ। तो मेरे साथ हुआ था कि मैंने ढूंढ लिया था विद कम्युनिटी की मेरे को कंफर्मेशन मिलती रही, जो कि मेरे लिए इजी रहा। Nice, fair ki because see, I have heard it from so many people now कि मैम next year नहीं हुआ तो, but there's another side of this thing कि what if it works out? हाँ या मैं भी यही बोलता था घर वालों को क्या पता हो जाए कि अगर, बट उसके लिए भी आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए कि आप मैं कर सकता हूँ, कि इट्स नॉट अ बिग डील। एक तो हम रिजल्ट को ऐसे बिग डील बना देते हैं कि मेरी तो लाइफ ही खत्म हो गई है एंड मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, एंड इट इज नॉट, बिकॉज इन अवर फील्ड एक साल लेट कुछ मैटर नहीं करता आपका एंड के लिए। एमडी के बाद कोई नहीं पूछने वाला आपने कितने अटेम्प्ट में क्लियर किया, आपने क्या किया। तो अगर आपको ड्रॉप लेना है या आप ले रहे हो तो और आपको बिलीव है कि मैं कर सकता हूँ तो जस्ट गो फॉर इट, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एंड वो भी आपको रूटीनली आपको सेल्फ डाउट होता है कि यार मैंने क्यों ही ले लिया, मैंने क्यों ही ले लिया। तो तब आपको खुद को समझाना पड़ता है, या वही कि पॉजिटिव एटीट्यूड्स वाले को आसपास रखना पड़ता है जो आपको समझा सके कि हाँ सही है तूने लिया है तू कर सकता Right, because day by day चीजें unfold होने लगती हैं. There must be some difficult days, but there है। must be some happy गुड days कि अरे डेज। wow इतना हो गया जैसे मैं ऐसा ये कुछ. बताना चाहूंगा कि मतलब जैसे सैरिबेलो में फॉलो कर रहा था तो मैम के टेस्ट लास्ट के ईएनडी 6.0, तो वो लास्ट सेट था मैम का, तो उसमें मैंने दिया। तो मेरा लाइक जैसे मेरे 100 में से नॉर्मली 75 करेक्ट होते थे, बट उस सेट में मेरे जैसे 85-90 करेक्ट होने लग गए, मेरा रैंक जैसे फर्स्ट 25 या फर्स्ट 30s में आने लग गया, तो उससे मेरे को बहुत ही बूस्ट हो गया। तब मेरा बिल्कुल ऐसे होगा कि हाँ यार मैं सही कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। तो मैं हैप्पी फेस वो ही बताना चाहूंगा अपना कि जो एंड पे मेरा वो हैप्पी फेस था फॉर ईएनटीज। उसके बाद उसके पीछे तो जैसे कभी अच्छा आता है कभी बुरा आता है, बट वो मेरे लिए काफी अच्छा फेस था कि हाँ मेरे को है कि मैं कर सकता Definitely, because मेरे को भी ये लगता है कि अगर सोचना ही है, if there's a uncertain situation तो हूँ या सोचना ही है, तो why not think कि positive हो जाएगा तो क्या हाँ होगा. हाँ। बुरा मेरा सोच के भी मेरा रिजल्ट भी क्या यही होगा था किसी को नहीं पता है. कि हाँ कि आई हैव टू जस्ट फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स, कि अगर नेगेटिव में सोचूंगा तो बुरा ही होगा। मेरे को है कि पॉजिटिव ही सोचो कि कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा। Yeah, because there's a thing I don't know. I have heard it कि the world of manifestation ना वो उसको no या word समझ नहीं आता है. So even if you are thinking कि काश वो नहीं होता, but उसको नहीं जैसा word कुछ नहीं पता है. Whatever you are thinking, it's going to happen. So मैंने मैनिफेस्ट की अक्सर आपको बात बताऊं मैंने लगाए हुए थे एक आई थिंक सो मेरे सीनियर ही थे,
डॉक्टर सुहानी, उनका भी मैंने सुना था, तो उन्होंने भी लगाया होता, तो फिर मैंने भी मैनिफेस्ट कर लिया था कि मेरा इतना रैंक आएगा। तो उसके लिए मैंने अपना आईएम सेट का कुछ 3 के लगाया हुआ था, बट फिर मेरा 6 के आया। मैंने कहा चलो एटलीस्ट डबल डबल ही आया, कुछ ज्यादा बुरा नहीं आया। और मैंने अपना नीट पीजी का अंडर 5 के लिए लगाया हुआ था, और अंडर 5 के ही आया। तो मेरे को काफी रियलाइजेशन हुआ कि जो आप मैनिफेस्ट करते हो और आप स्ट्रांगली बिलीव रखते हो उसमें, तो वो एक्चुअली हो जाता है। राइट, इट्स जस्ट दैट कि आप अपनी एनर्जी किस थॉट पे या डाल रहे हो, एंड इट प्लेज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट रोल। हमें रियलाइज नहीं होता है, वी कीप डीमोटिवेटिंग आवरसेल्फ, अपने बारे में गलत वर्ड्स बोलते हैं कि मुझसे नहीं होगा, वी नॉट रियलाइजिंग कि हम खुद को ये भरोसा दिला रहे हैं कि मुझसे नहीं होगा। बाहर वाला हमारा दुश्मन नहीं है, वी आवरसेल्फ बिकम तुम आवर खुद ही रात को बोल रहे कि यार मेरे से सुबह उठ के ये तो करा ही नहीं जाएगा, बट उस तभी आपको या खुद को ही बोलना पड़ेगा कि यस यू कैन डू इट। या आपके पेरेंट्स, आपके अराउंड पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, या कोई मेंटर से बात करनी चाहिए जो आपको बोल सके कि यार तू कर लेगा, चिंता मत कर, जस्ट कंफर्मेशन ही दे दे। आई थिंक सो वही बहुत होती है एज ए कोई भी एस्पिरेंट के लिए। एश्योरेंस बहुत है, बिकॉज या पढ़ाई तो आप ही कर रहे हो या ना, पढ़ाई या तो आपको ही करनी है। इट्स जस्ट कि जब मैं गलत कर रहा हूँ तो somebody can push me out and say कि ये गलत हो रहा है, this approach won't work या out because they have already tried that approach, and और ये कि mindset wrong जा रहा है तो no, this is not a right mindset to have, या change this। हाँ, और आपको होता है कि चलो कोई साथ है, कोई बंदा आपको पुश कर रहा है कि यस यू कैन डू इट। जैसे हर वेबिनार में मैम बोलते थे कि टेंशन लेने की बात नहीं है, कि मेरे को पूरा बिलीव है आप पे, आप अच्छा ही करके आओगे। तो उससे ऐसे हो जाता था कि थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता था कि हाँ चलो कोई तो ऐसे बोल रहा है कि आप अच्छा ही करके आओगे, तो यस, तो उससे काफी बेनिफिट है। I am so proud of you, Devam. I'm so happy for you, थैंक यू। and all the best for counseling. थैंक Counseling यू में कोई भी help चाहिए तो let us know, because anyway we'll let you, all of you know कि 2-4 दिन में we'll make the new counseling thing live. Based on your rank we'll able to figure it out कि आपको कौन से कॉलेज करना है, and we'll able to talk to the resident who is sitting in that college, ताकि आपको internal information पता चले कि should I go for that college or not, because surgical branch is not about डीएनबी मेडिकल मेरे को लाइक मैं डीएनबी मेडिसिन के लिए कॉलेज देख रहा तो उनके लिए मैं कोई रेजिडेंट्स वगैरह ढूंढ रहा था कि किससे बात हो जाए कि आपका प्रोग्राम कैसा है। तो definitely आपने बोल ही दिया हमें। हाँ, so that thing will be, we are working on it, तो 2-4 दिन में we'll make it live, तो it will be very simple for you to make a decision, because यही है कि decision making बहुत easy करना है। हाँ, So that decision making will work this way, you just have to put your rank and couple of filters जैसे medicine and all, it will give you that which college should be most probable for you to get it, like most probable, least probable करके आपको बता देगा college, and it will show कि जिस college में resident है, you can just book a one-on-one उनसे personally, college का क्या है, ये भी मैं बहुत रिलीव्ड हूँ कि आपने ये भी स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पे भी मोस्ट आई थिंक सो काउंसलिंग में यही दिक्कत आती है कि आपको चॉइस फीलिंग या आपको कुछ अगर पूछना है कि मैंने इस कॉलेज में लेनी है और यहाँ पे प्रोग्राम क्या है। मैं वही, जैसे मैं किसी से अब मैं फ्रेंड से ढूंढ रहा था कि तेरे को कोई जानता है पीजी, तेरे को कोई जानता है पीजी, और आपने जैसे ये इनिशिएटिव लिया, इट्स रियली गुड इनिशिएटिव। Glad, it's just give us 2-3 more days, उसकी वजह से ही बहुत ज्यादा occupied है हम लोग इधर, so we'll just make it live, and we even plan कि we'll host couple of webinars to just to talk about it कि अगर DNB medicine लेना है, MD medicine लेना है, what to take, peripheral medical college में क्या है, या फिर new state medical college में क्या है, central institute, everything which is important to make a decision। तो एक जो common webinar होता है that so many people will be there, वो भी opportunity होगी, and at the same time one-on-one का भी opportunity होगा। काउंसलिंग अच्छे से जाना है। थैंक यू। चलो, so it's lovely talking to you, and same to you. So all the very best, and if you need any help, we are always there. Yeah, sure. Thank you, ma'am.